Our today's topic is diabetes mellitus. Endocrine system is a coordinating system of the body. The endocrine system communicates through chemical substance known as hormones. एंडोक्राइन सिस्टम नॉर्मली जो केमिकल रिलीज करता है उसको हार्मोन्स बोलते हैं और हार्मोन आर इम्पोर्टेंट इन द रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, है ना. नॉर्मली 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली पोर देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड. So these are the various endocrine gland. These are pineal gland, hypothalamus, parathyroid gland, adrenal gland, kidney, testes, ovaries, pancreas, thyroid gland and pituitary gland. These all are endocrine glands. So the endocrine gland include hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, pancreas, ovaries, testes and pineal gland. The function of endocrine system are production of hormone, transportation of hormone, regulation of hormone secretion. After that, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस, तो इट इज रिलेटेड टू पैनक्रियास. सो वी विल स्टडी द पैनक्रियाटिक ग्लैंड. पैनक्रियास इज हैविंग द islets of Langerhans cell which act as a endocrine, which are having endocrine function. So these Langerhans cell contains alpha cell, beta cell, delta cell or gamma cells. Alpha cell secrete glucagon and beta cell secrete insulin. Delta cell secrete somatostatin. Somatostatin is also called as the growth hormone, release inhibiting hormone. And gamma cells secrete pancreatic polypeptide. So glucagon, insulin help in the conversion of glucose into the glycogen. Glucagon help in the conversion of glucagon to the glucose. Somatostatin inhibits the synthesis of both insulin and the glucagon, and also it is called as the growth hormone release inhibiting hormone. And pancreatic polypeptide inhibit gallbladder contraction. It inhibits the gallbladder contraction and pancreatic exocrine secretion. So these are the various secretions of the endocrine pancreas. Pancreas is both endocrine as well as exocrine gland. So these are the function of endocrine pancreas. So insulin is released by the beta cells of the pancreatic Langerhans, and due to impairment in insulin, the person get affected with the diabetes mellitus. Here this is pancreas and it contains the beta cells. Also beta cells secrete insulin. After that, the introduction. What is introduction of diabetes mellitus? It is also called as hyperglycemia. ये एक chronic condition है in which the blood glucose level is increased more than 120 mg per dl fasting due to लैकिंग ऑफ द इंसुलिन. जब बॉडी में इंसुलिन या तो कम हो जाएगा या हमारे सेल्स इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है. आफ्टर दैट द डेफिनेशन, डायबिटीज मेलाइटस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड दैट रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, एक्शन और बोथ, है ना. तो इसमें ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा. क्यों इंक्रीज होगा? ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन. या तो इंसुलिन प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रही है या तो फिर एक्शन, ठीक है, कि इंसुलिन सिक्रीट तो हो रही है बट हमारे सेल्स इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. तो या तो दोनों हो सकते हैं, सिक्रीशन भी और एक्शन भी. तो डायबिटीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें कि जो द वे बॉडी यूजेस डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स लेते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज एक शुगर की फॉर्म है विच एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, जब ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगा तो इंसुलिन रिलीज होगी. इंसुलिन हेल्प इन द
ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, ठीक है। तो अगर इंसुलिन नहीं होगी तो सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। डायबिटीज डेवलप व्हेन द बॉडी डजंट मेक इनफ इंसुलिन और इज नॉट एबल टू यूज इंसुलिन इफेक्टिवली। या तो इंसुलिन प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रही है, बीटा सेल डैमेज हो गए हैं, इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रही है, या तो बीटा सेल्स ठीक है, इंसुलिन प्रॉपरली सिक्रीट कर रहे हैं, बट हमारे सेल उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ कॉजेज हैं। आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज इज मेनली ऑफ 4 type: type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, gestational diabetes or pre-diabetes. Firstly, we will study about the type 1 diabetes mellitus. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन मतलब इसमें जो पर्सन है कंप्लीटली इंसुलिन, आउटर इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसको बाहर से इंसुलिन मिले, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज, ये जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो डायबिटीज है वो क्यों हो रहा है कि हमारे जो इम्यून सेल्स हैं दे डिस्ट्रॉय द पैनक्रेटिक बीटा सेल। जब हमारा कोई ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हुआ विच डिस्ट्रॉय द बीटा सेल ऑफ द pancreas, so pancreas are unable to produce the hormone insulin, the only cell in the body that make the hormone insulin that regulate the blood glucose. क्लियर हो गया। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। इसमें बीटा सेल्स ऑफ pancreas are destroyed by the immune system of the individual, so they are unable to produce the insulin. And this form of diabetes usually strike children and the young adult. ये mainly किस में होता है, चिल्ड्रंस में होगा, यंग अडल्ट में होगा, एंड किसी भी एज ग्रुप में इसका ऑनसेट हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर क्या है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का, आइदर ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या एनवायरमेंटल फैक्टर में ऑल्सो कॉज दिस। आफ्टर दैट type 2 diabetes, it is also called as non-insulin dependent diabetes mellitus, and इट इज ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो बीटा सेल है वो इंसुलिन नॉर्मली सिक्रीट कर रहे हैं, बट जो हमारे बॉडी सेल्स हैं दे आर अनेबल टू टेक दिस इंसुलिन, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, और इट यूजुअली बिगिन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, और डिसऑर्डर इन विच द सेल डू नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली। तो इसमें हमारे बॉडी सेल इंसुलिन को यूज नहीं कर पाते हैं, एंड इट मे कॉज द हाइपरग्लाइसीमिया। दिस हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट स्टिमुलेट्स द पैनक्रियास टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। जब बॉडी में बॉडी सेल्स इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो विच में स्टिमुलेट द पैनक्रियास टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन विच लीड टू हाइपर इंसुलिनीमिया, ठीक है। ब्लड में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, बट जब सेल ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगे तो सेल में ग्लूकोज की क्या है, डेफिशिएंसी है, कमी है ना। तो सेल फिर पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेंगे कि इंसुलिन सिक्रीट हो, तो इंसुलिन का लेवल भी उस कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगा, हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाएगा। तो टाइप 2 डायबिटीज इज एसोसिएटेड विद ओल्डर एज, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, history of gestational diabetes or impaired glucose metabolism या physical inactivity. These are the risk factor for type 2 diabetes mellitus. As shown here, this is type 1 diabetes mellitus, this is type 2 diabetes mellitus. ठीक है, इसमें क्या है कि जो इंसुलिन है प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रही है, जो पैनक्रियास है, पैनक्रेटिक सेल डैमेज हो गए हैं, विच आर अनेबल टू प्रोड्यूस द इंसुलिन, ठीक है, डिमिनिश्ड इंसुलिन, एंड दीज आर इंसुलिन रिसेप्टर जहाँ पे इंसुलिन कंबाइन होती है और इट ओपन दिस पाथवे, तो यहाँ से ग्लूकोज फिर अंदर एंटर हो जाएगा, बट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन दिस पाथवे डजंट ओपन एंड द ग्लूकोज इज अनेबल टू एंटर इनटू द सेल, ठीक है। जैसे ये मसल सेल बताया गया है, डिमिनिश ग्लूकोज अपटेक, ये ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, ठीक है। बट इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो इसमें इंसुलिन तो प्रेजेंट है, इंसुलिन इज प्रेजेंट, बट
क्या है कि जो हमारे सेल्स हैं दे आर अनेबल टू डिटेक्ट द इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर पर इंसुलिन अटैच हो गया, बट जो ये रिस्पॉन्स इस GLUT4 को करता है ये नहीं कर पाएगा, ठीक है, विच डिले द एंट्रेंस ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सेल। तो इसमें इंसुलिन तो प्रेजेंट है, बट जो ये स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस प्रॉपर नहीं हो पाएगा कि हमारे सेल्स में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है, विच आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन। तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इसमें इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रेजेंट होती है। आफ्टर दैट थर्ड वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज, अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस दैट इज डायग्नोस्ड इन सम वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये मेनली प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होता है, मतलब उस फीमेल को पहले कोई डायबिटीज नहीं है, बट जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसको क्या है, डायबिटीज हो गया, तो दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज अकर मोर फ्रिक्वेंटली अमंग ओबीज वुमेन, जो ओबीज होती हैं, जिनका BMI ज़्यादा है, उसमें ये ज़्यादा देखा गया है, और द वुमेन हैविंग द हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ रिक्वायर ट्रीटमेंट, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज फिटल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज प्री डायबिटीज। इट इज़ अ न्यू टर्म फॉर इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, कि एक न्यू टर्म है, मतलब इसमें जो ग्लूकोज लेवल है इतना भी इंक्रीज नहीं है कि उसको डायबिटीज डायग्नोज किया जाए, ठीक है, तो इट इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लूकोज लेवल दैट आर हायर देन द नॉर्मल। नॉर्मल से तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा, बट नॉट हाई इनफ टू बी डायग्नोस्टिक ऑफ डायबिटीज, बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि उसको डायबिटीज डायग्नोज कर दिया जाए। यूजुअली दोज हु हैव प्री डायबिटीज डू नॉट हैव एनी सिम्टम, ठीक है, जिसको प्री डायबिटीज होता है उसको कोई ज्यादा सिम्टम अपीयर नहीं होते, बट उसका जो if nothing is done to lower their glucose level, they are great risk of developing diabetes within the 10 ईयर, है ना, अगर उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल नहीं हुआ तो वो डायबिटिक हो सकते हैं। आफ्टर दैट द इटियोलॉजी इंक्लूड जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, अगर हेरिडिटरी है, ठीक है, पेरेंट्स को है, फैमिली हिस्ट्री है, तो हो सकता है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, अगर बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो गई है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज पॉल्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है, वायरसेस एंड इन्फेक्शन ऑफ द पेनक्रियास में, पेनक्रियाटाइटिस में ऑल्सो कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स। एबनॉर्मल ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर, अगर लीवर एबनॉर्मल ग्लूकोज प्रोडक्शन कर रहा है तो उससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। बीटा सेल डिसफंक्शन, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये मेडिकेशन एंड द केमिकल टॉक्सिन्स। आफ्टर दैट द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि जो इंसुलिन है इट इज इनसफिशिएंट, है ना, प्रॉपरली सफिशिएंटली सिक्रीट नहीं हो रही है, तो रिड्यूस टिश्यू अपटेक ऑफ इंसुलिन, तो जो टिश्यू हैं हमारे बॉडी टिश्यू हैं वो भी इंसुलिन अपटेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन क्या है, कम है, तो बॉडी सेल्स भी कम इंसुलिन मतलब इंसुलिन अपटेक नहीं कर पाएंगे, तो इससे फिर इंट्रासेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, एक्स्ट्रासेलुलर हाइपरग्लाइसीमिया। सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा, बट ब्लड में या एक्स्ट्रासेलुलर जो स्पेसिस हैं उसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ड्यू टू इंट्रासेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया, जब सेल के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया इट कॉजेज ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस में जो ग्लाइकोजन था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज, जैसे प्रोटीन है, फैट है, तो उससे भी ग्लूकोज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट स्टार्ट हो जाएगी, अगर फैट की ब्रेक डाउन क्यों होगी, ताकि उससे ग्लूकोज रिलीज हो, है ना, बट जो फैट होता है इसमें इसका जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, दीज आर द कीटोन बॉडीज, ठीक है, तो कीटोन बॉडीज जब इंक्रीज हो जाएंगी तो इट कॉजेज द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, ब्लड में कीटोन बॉडीज का नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, और ड्यू टू ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होगा, डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, लिथार्जी, सिम्टम अपीयर होंगे, पॉलीफेजिया, डिक्रीज गामा ग्लोबुलिन, ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन और इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, ठीक है,
वुंड हीलिंग भी डिले हो जाएगी। बट जो एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपरग्लाइसीमिया है उससे क्या होगा, जो ब्लड ग्लूकोज रीनल थ्रेशोल्ड है ये इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन में भी ग्लूकोज एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। विच कॉजेज द सिम्टम्स सच एज पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपोकैलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। क्योंकि जब पॉलीयूरिया हो रहा है तो पोटेशियम और सोडियम का भी यूरिन में लॉस हो जाएगा, और हाइपर ऑस्मोटिक प्लाज्मा हो जाएगा। जो प्लाज्मा में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, जैसे कि ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो गया तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बिकम हाइपर ऑस्मोटिक। जब प्लाज्मा के में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो सेल से फ्लूइड प्लाज्मा में आ जाएगा, तो सेल में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, है ना। क्योंकि क्यों फ्लूइड बाहर आएगा, ताकि इसका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन हो पाए, तो सेल में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, विच कॉजेज हाइपर ग्लूसीमिक कोमा। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी of diabetes mellitus. After that the symptom of diabetes mellitus, it include central में polydipsia और polyphagia, excessive thrust person को लगेगी, excessive polydipsia is excessive thrust and polyphagia is excessive hunger, person feel lethargy और stupor में जो person की movement है that the person is unable to move voluntarily, ठीक है। एंड सिस्टेमिक में वेट लॉस हो जाएगा बिकॉज सेल आर अनेबल टू टेक द ग्लूकोज, सो वेट लॉस होगा। रेस्पिरेटरी में कॉस्मल्स ब्रीदिंग होगी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपर वेंटिलेशन। कॉस्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, डीप रैपिड लेबर्ड ब्रीदिंग, ठीक है। एंड आईज में ब्लड विजन होगा, एंड क्योंकि जो माइक्रोवेस्कुलेचर है दैट विल बी अफेक्टेड। ब्रीथ में स्मेल ऑफ एसीटोन, एसीटोन स्मेल क्यों आएगी, बिकॉज कीटोन बॉडीज आर इंक्रीज्ड, तो जब कीटोन बॉडी इंक्रीज होंगी तो ब्लड की एसिडिटी, ब्लड क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। आफ्टर दैट जीआई सिम्टम में नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, एंड यूरिनरी में पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, एंड ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया मीन्स ग्लूकोज इन यूरिन। तो जो फर्स्ट सिम्टम है डायबिटीज का दैट इज एक्सेसिव यूरिनेशन, है ना। पॉलीयूरिया सबसे मतलब मेन जो सिम्टम है, सबसे पहले जो सिम्टम अराइज होगा वो पॉलीयूरिया है। एंड इन जनरल कंडीशन द यूरिन इज डाइल्यूट एंड इज पेल इन कलर। तो जब यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो यूरिन कैसा रहेगा, डाइल्यूटेड रहेगा, ठीक है। दिस आर द सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। आफ्टर दैट द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इट इंक्लूड चेकिंग द ब्लड, fasting glucose test. Fasting blood glucose testing involve measuring blood glucose level आफ्टर नॉट ईटिंग और ड्रिंकिंग फॉर 8 to 12 आवर। इसमें जो पर्सन है 8 से 12 घंटे तक उसने कुछ इंटेक नहीं करना है, एंड द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज लेस देन 100 mg पर DL। और अगर पर्सन का 126 mg पर DL से हाई फास्टिंग ग्लूकोज आता है तो इट इंडिकेट द डायबिटीज। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, एंड दिस द person have to give the sample at any time throughout the day. The random blood glucose of 200 mg per DL or higher in person who have symptom of high blood glucose suggests the diagnosis of diabetes. इसमें अगर 200 mg per DL से ज़्यादा है तो it indicate the diabetes. After that HbA1c that is glycated hemoglobin, तो ये इट इज़ ऑल्सो अ ब्लड टेस्ट। इसमें जो प्रीवियस 2 से 3 महीने तक का ब्लड ग्लूकोज लेवल है दैट इज एवरेज, तो वो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता चलता है, और इट इज़ लेस देन 6%। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज OGTT, तो इट इज़ अ सेंसिटिव मार्कर फॉर डायबिटीज। इसमें पर्सन को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ओरली इनटेक करना है।
75 gram of glucose are given to patient with 300 ml of water after a overnight fast, है ना. इसमें भी पर्सन को फास्टिंग पे रहना पड़ेगा और उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज 300 ml of water में डिसॉल्व करना है. आफ्टर दैट द ब्लड sample should be taken and the blood glucose level should be checked. After that, glucosuria, this test is done to detect glucose in urine by a paper strip. Ketonuria, in this the ketone bodies can be detected in the urine. After that, self monitoring of blood glucose, इसमें जो पर्सन है खुद अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोमीटर. तो एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर आउट पेशेंट मॉनिटरिंग, स्पेशली फॉर पेशेंट who need tight कंट्रोल ऑफ देयर ग्लाइकेमिक स्टेट. तो इसमें एक पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है एज शोन हियर इन दिस फिगर. these are the portable battery operated devices and these are used to measure the blood glucose level. These are also called as the glucometer, and in this the person have to prick skin with the help of lancet. These are the lancet. With the person can prick on the skin and then the monitor glucose level with the help of this glucometer as shown here. After that, the management of diabetes mellitus. Management include diet, exercise, oral anti-diabetic agent or monitoring education. First is diet. In diet, diet is the basic part of management in every case. Treatment cannot be effective unless adequate attention is given to ensuring appropriate nutrition. तो इसमें जो डाइट है पर्सन इंश्योरिंग, सबसे पहले क्या पर्सन ने देखना है कि उसको अपना वेट कंट्रोल करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है एंड अपना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना है. और जो लिपिड एबनॉर्मेलिटी है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो अ कॉज ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो अपना जो लिपिड एबनॉर्मेलिटी है उसको कंट्रोल करना है, जैसे कि LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड है, तो पर्सन हैव टू कंट्रोल दिस. तो इसमें जैसे फैट है, फैट हमें 25 to 35% कैलोरीज प्रोवाइड करता है. टोटल जो 100% जो टोटल कैलोरी इंटेक है उसमें से 25 to 35% इज प्रोवाइडेड थ्रू फैट. एंड कोलेस्ट्रॉल कंजप्शन इज लेस देन 300 mg और लेस पर डे. ठीक है. और प्रोटीन इनटेक कितना करते हैं पर्सन? 10 to 15% ऑफ द टोटल कैलोरी. जो हमें कैलोरी मिलती है दैट इज फ्रॉम द प्रोटीन. एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 50 to 60% ऑफ टोटल कैलोरी कंटेंट. कार्बोहाइड्रेट शुड बी complex and high in fiber. Excessive salt intake should also be avoided, and it should be particularly restricted in people with hypertension and those with the nephropathy. जिसको hypertension या nephropathy है उस condition में salt intake कम करना है. After that, exercise is done to for weight reduction, ताकि जो हमारे सेल्स हैं वो इंसुलिन अपटेक कर पाएं, जिससे ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा. टुगेदर विथ डाइटरी ट्रीटमेंट, अ प्रोग्राम ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस शुड बी कंसीडर. पर्सन को फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, विच हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने चलाए हैं. आफ्टर दैट, सेकेंड इज ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट. इट इंक्लूड oral anti-diabetic agents such as biguanide. It include metformin. It inhibit the production and release of glucose from the liver. Next is insulin secretagogues, which include sulfonylureas. These help in the production of insulin from the pancreas. After that, non-sulfonylureas and alpha glucosidase inhibitor and thiazolidinodines.
After that, types of insulin. Insulin is of different types. First is rapid acting insulin. This start working within a few minutes and last for a couple of hours, है ना, कुछ मिनट्स में ही ये स्टार्ट अपना एक्शन स्टार्ट कर देगी. एंड रेगुलर और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, एज द नेम इंडिकेट, शॉर्ट एक्टिंग है ना, इट takes about 30 minutes to work fully and last for 3 to 6 hours. And intermediate acting insulin, this take 2 to 4 hours to work fully और इसका इफेक्ट 18 hours तक रहता है. After that, long acting insulin, there is no peak level of in the bloodstream and it can be keep working for an entire day, है ना. long acting मतलब जो entire day person इंसुलिन में रहेगा. And after that, sites of giving injectable insulin, these are the sites of insulin. Upper aspect of the buttocks, back part of the scapula is also used, lateral side of the arm, lateral and posterior, somewhat posterior side of the arms, and around the umbilicus, and these are the sites of giving injectable insulin. After that, the surgical management. Surgical management include pancreatic islet transplantation. इसमें जो आईलेट सेल्स हैं उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है. इन केस अगर आईलेट सेल डैमेज हो गए तो उस कंडीशन में ये करेंगे. आफ्टर दैट, मॉनिटरिंग. फोर्थ वन इज मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग में क्या करेंगे? A1C, इसमें अल्फ़ाबेट्स दिए हैं ABCDEFGHI. A इंक्लूड A1C टेस्ट, B इंक्लूड BP, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डायबिटीज एजुकेशन, and E for eye examination, F for foot examination, G for glucose monitoring, H for health maintenance, and I for indication for specific care. So we will study one by one. Monitoring blood glucose. In this, the glucose level should be monitored by the person himself. Self monitoring of blood glucose is component of effective therapy. After that, health maintenance. The person have to protect himself from the other infection and also from the complication of high diabetes. And A1C test, it help to provide the reading for at least 2 to 3 previous months of the glucose. And next is BP. BP include hypertension is a major risk factor for cardiovascular disease. अगर person को hypertension है, उसका लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, तो उसकी वजह से पर्सन को कार्डियोवैस्कुलर डिसीज या माइक्रोवैस्कुलेचर कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा चांसेस है. माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन सच एज रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी होने के ज्यादा चांसेस है. आफ्टर दैट, कोलेस्ट्रॉल मॉनिटरिंग. तो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल है, वो मॉनिटर करना है. तो जो LDL है उसको लो करना है और HDL को रेज करना है और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करना है. एंड these are the after that next is diabetes education. In this, the person have to give the education regarding how to control the diabetes. Self management देंगे person को, self management, how to do self management to control diabetes, and complication से कैसे prevent करना है. जो long term complication है such as neuropathy, nephropathy, तो उनसे कैसे person ने protect करना है. After that, monitoring of the eye examination. तो इसमें early detection करेंगे because इसमें जो diabetes है, diabetes में microvasculature affect होता है. तो eye examination should be done early detection for the treatment to preserve the vision, because due to diabetes the person may also become blind in the later years. So proper detection should be done and treatment should be taken. After that, next is foot examination. foot क्योंकि ज़्यादा chances क्या होते हैं,
फुट अल्सर होने के होते हैं, बिकॉज जो माइक्रोवेस्कुलेचर है अफेक्ट हो गया, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तो गैंग्रीनस फॉर्मेशन हो सकता है। तो देयर मे बी चांसेस फॉर एम्पुटेशन की, कि उस पार्ट को एम्प्यूट करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए एम्पुटेशन एंड फुट अल्सरेशन आर अमंग द मोस्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। जब न्यूरोपैथी होता है, माइक्रोवेस्कुलेचर अफेक्ट होगा, नर्व्स अफेक्ट होंगी, तो उस वजह से फुट अल्सर और एम्पुटेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो भी चेक करना है। आफ्टर दैट द ग्लूकोज मॉनिटरिंग आ जाएगा, कि प्रॉपर ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल करना है, खुद अपना ग्लूकोज लेवल चेक करना है। तो दिस इंक्लूड इन द मॉनिटरिंग। आफ्टर दैट कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड द acute or chronic complication. Acute complication include hyperglycemia. Due to hyperglycemia there is diabetic ketoacidosis, and hypoglycemia include hyperglycemic hypermolar नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो फैट है, फैट का डाइजेशन होगा, ड्यू टू फैट डाइजेशन जो फैट का एंड प्रोडक्ट है दैट इज कीटोन बॉडीज, तो कीटोन बॉडीज ब्लड में इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो बाकी जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसमें हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरमोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, इसमें कीटोन बॉडी इंक्रीज नहीं होंगी बट हाइपरग्लाइसीमिया इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में जब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहेगा, इट अफेक्ट माइक्रोवेस्कुलेचर और मैक्रोवेस्कुलेचर। अगर माइक्रोवेस्कुलेचर अफेक्ट हुआ इट कॉजेज डायबिटिक रेटिनोपैथी, बिकॉज जो रेटिना में जो आईज में छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं दे विल बिकम अफेक्टेड, है ना, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, विच में कॉज अ डायबिटिक रेटिनोपैथी, due to which the vision may also be affected. Diabetic nephropathy, तो it also affect the नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स में जो आर्टरीज हैं, वेस्कुलेचर है, इट बिकम अफेक्टेड, ड्यू टू विच द पर्सन किडनी में बिकम अफेक्टेड। आफ्टर दैट डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो पर्सन है उसको पैरेस्थीसिया होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, नमनेस होगी, एंड द पर्सन टच सेंसेशन ऑफ द पर्सन इज डिक्रीज्ड, क्योंकि जो नर्व एंडिंग है दे बिकम डैमेज्ड, है ना। तो मेनली जो पेरिफेरल जो नर्व्स वास्कुलेचर है वो ज़्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि पेरिफेरी में पुअर सर्कुलेशन होता है। आफ्टर दैट डायबिटिक फुट में भी यही होगा कि जो नर्व्स हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं वो अफेक्ट होंगी। जब पर्सन की नर्व्स अफेक्टिंग होगी तो जो उसका सेंसेशन है दैट इज इंक्रीज, जो blood supply here that is also decrease, and the person is having less touch sensation, that's why the person may having the diabetic foot. After that macrovasculature complication, जो macrovasculature मतलब जो larger vessels हैं उसमें coronary, cerebral, peripheral macro vessels है ना, वो अफेक्ट होंगी, तो इसमें प्लेक फॉर्मेशन हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो सकता है। After that next is nursing assessment. Assess the patient for any type of infection, trauma, stress, pancreatitis, and take the family history, and assess for metabolism, nutritional status, elimination, exercise, eye, integumentary system of the patient, cardiovascular system is also checked. Then the nursing diagnosis, ineffective therapeutic management related to insufficient knowledge as evidenced by हाइपरग्लाइसीमिया, रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू डिक्रीज टैक्टाइल सेंसेशन, क्योंकि इसमें नर्व्स अफेक्ट हो रही हैं, जो पर्सन है उसका जो सेंसेशन है वो अफेक्ट होगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड द एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंटेक ऑफ एक्सेस ऑफ एक्टिविटी, एक्सपेंडिचर और मेडिकेशन कवरेज एज एविडेंस्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया एंड वेट गेन। Anxiety related to fear of death and the hospitalization. Risk of peripheral neurovascular dysfunction related to vascular effect of the diabetes. Knowledge deficit related to poor educational status about the disease condition. And these are the nursing intervention for these.
After that, the health education, tell the patient for self care. Patient is educated regarding the self care. क्या क्या self care के बारे में educate करना है? Blood glucose monitoring, body weight monitoring, how to do foot care, how to maintain personal hygiene, healthy lifestyle maintenance, and identify target for control. ठीक है, कि कैसे उसने अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना है, उसके लिए पर्सन का क्या टारगेट है, उस बारे में उसको एजुकेट करेंगे. एंड स्टॉप द स्मोकिंग. देन हाउ टू प्रिवेंट द डायबिटीज. फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज द पर्सन हैज टू डू द रेगुलर वॉक, रेगुलर एक्सरसाइजेस, एंड द पर्सन हैज टू स्किप शुगरी ड्रिंक्स. ना, जो आर्टिफिशियल शुगर है उसका इंटेक कम करना है. डू नॉट स्मोक, मैनेज वेट. द ओबीस पर्सन आर मोर प्रोन to diabetes, so manage your weight, get active, and eat more fruit and vegetables. And this is all about the